Wasn't it the moment of pride for all of us? Well, now is the time to lend our ears to these distinguished personalities who are going to inspire us once again through their words of inspiration. So, I would like to call upon our honorable chief guest, Sayyid Muzaffar Hussain sir, to inspire us with his words of inspiration. A round of applause, everyone. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 25th year Silver Jubilee celebration of Mohammad Hussain Banegar Educational Trust. Honorable President of the Trust, my Chacha, whom I from my childhood call him Gullu Chacha, Gulam Dastagir Banegar Sahab. Late my Chacha Iqbal Hussain Banegar, my brother, whom I always call Zubair Bhai, Abdul Rahman Zubair Banegar, my brother Khalid Banegar, और आज जिनका जन्मदिन है और एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी 25 साल अपना मना रहा है, वो मेरे छोटे भाई, क्योंकि मेरे से सिर्फ 4 महीने छोटे हैं, फारूक हुसैन बानेगर. All second generation and third generation of Banegar family, all elders of the families, all trustees, principal of the school and the junior college, teachers of the institutes, all distinguished and respected staff of the school, and my dear students, my dear friends, family and members, all distinguished guests on the dais. सबसे पहले बानेगर फैमिली को इस 25 साल की सिल्वर जुबली की मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं चाहूँगा आप सब लोग ज़ोरदार तालियों से इसका स्वागत करें. आप हम सब इस्लाम को मानने वाले लोग हैं और ये आप हम सब जानते हैं कि इस्लाम की आमद आदम अलैहिस्सलाम से शुरुआत हुई और आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद के बाद मुकम्मल हुई. उसके बीच में कितने लाखों पैगंबर आए ये आप और हम कोई नहीं जानता. कहा जाता है कि 1.25 लाख पैगंबर आए, मगर आप और हम चंद लोगों के नाम, चंद पैगंबरों के ही नाम याद रखते हैं या याद है. कहने का मतलब मेरा ये है कि किसी भी कौम को, किसी भी मज़हब को, किसी भी इंस्टीट्यूट को बनने के लिए सालों साल लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स. बानेगर फैमिली ने अपनी ज़िंदगी का 25 साल 25 लॉन्ग ईयर्स लगा दिए इस एजुकेशन इंस्टीट्यूट को खड़ा रखने के लिए. बहुत बड़े सरमाएदार होते हैं, कॉरपोरेट सेक्टर्स होते हैं, जिनके पास बहुत बड़ा सरमाया होता है, कैपिटल होता है. वो अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बनाते हैं तो इट इज़ अंडरस्टूड कि इट्स देयर पार्ट एंड पार्सल ऑफ देयर बिजनेस. बट विद समवन हु डजंट हैव पेनी इन हिज पॉकेट and things to take care of the community and to build an education institute for the community which is already downtrodden, which is looked at as a downtrodden community, a backward community, and somebody has the feelings, emotions, sentiments in his heart that something has to be done and I should contribute in the upliftment of the community, and which can be done only through education. It takes a lot of pain, struggle, emotions, sentiments, determination, and hard work, which the Banegar family has put into it.
I remember the old days of 69, 70, 71, 72, 73, when my dad got into contact with this family and they started with an Bannegar Engineering Works factory. You must not be aware where this factory was located because the documentary didn't mention it. It was located near SK Stone, opposite SK Stone. And I remember Gullu Chacha and late Muhammad Hussain Bannegar, the grandfather of Farooq, used to come by train from Grant Road. They used to have their residence at Grant Road, next to one talkies called Super Talkies. Correct, Farooq? From there, they used to take a train and come to Mira Road with tiffin in one hand and Gullu Chacha putting one napkin on his shoulder and used to walk from railway station right up to that SK Stone where that Bannegar factory was there. There was no roads, there was no lights, there was no water, no transportation, no communication, nothing for us. That hard work and struggle we both the families have seen in upbringing this entire city. You don't know what happiness and tears in our eyes we are having today while we are felicitating each other. You must be thinking the entire Bannegar family is sitting here and they are felicitating Hussain family, and Bannegars are felicitating Hussain, Hussain are felicitating Bannegar. But it has taken 50 years of both the families to make this city and make this institute and make you people and the students sit here. You won't understand the feeling and the emotions and the sentiments. While I was watching the small kids performing here, I was remembering the words of my father, the words of Muhammad Hussain Bannegar, and the words of my uncle, Iqbal Chacha. They used to sit down and talk outside my dad's house, Noor Nazar Manzil, where there was no road, nothing. There was no lights. We used to put on the laltens. You must be watching it only in the movies, but we had seen it by our own eyes. And this guy sitting there and talking that one day this city will be world famous, renowned, and the Muslim community will be qualified, educated, graduated. Zubair, Farooq, Khalid, we were small. But I can still feel those words in my ears. My dad, in his last breath also, while he was on the bed for 5 years, just last year when I visited him, and he was unable to speak, but still he spoke only one word. And he told me, take care of my community. See to that the community, my girls, my boys, my community studies, get education. Don't shut down NJ school, don't shut down NJ school. He had lost all his memories, but it's only by the wish of Allah that somebody makes someone so profound of something and so determined of something. And the same thing I used to see in Iqbal Chacha and Gullu Chacha. And that is the reason that entire family is here on an educational school's 25th year of celebration. It is not that for your claps, it is not that you should give praises because they are trustee of your educational institutes, because they have to take care of you and you have to study in their school. It is not for that reason. It's a role model. The community across the world, across the city, across the country needs families like these who can work for the interest of the society and the community. Today we have maximum number of schools in Mira Road. I always tell that Mira Road and especially Muslim community, this is the only city where each and every child in each and every family, may it be a rickshaw chalak, may it be a hawker, they are going to school.
They are schooling, they are getting education. This is the only city in the country, I can say. It takes lots of dedication and determination to do it. You must be thinking, these guys, these youngsters sitting here, they are lucky guys because they are going to own this institute, and they are multimillionaires and they are billionaires and they are lakhopati and krodpati. That's not an easy game. Somebody can generate wealth, but he cannot generate the generation to take care of it and take it forward. That can be done only if the determination is there and the clarity of mind and thought is there, and only then Allah grants this happiness and this unity in the family. What our community lacks even today is the unity in the family. Our religion, Islam, has taught us. Jubair bhai, you spoke very well today. I am very happy to see you not becoming a politician, but becoming a philanthropist and becoming a socialist activist. That you addressed the issues and points which should have been addressed and which should be addressed from the member of our mosque and masjid, but unfortunately it is not being addressed. So it becomes the duty of people like you and me to tell the truth and show the mirror to the society. This is the fact, and this is how we need to improvise. Islam is very simple. Because it is in Arabic language, you find it very complicated. Quran is very simple. It is an encyclopedia on human life. Nothing more than that. Nothing more than that. इससे ज़्यादा कुछ नहीं है. 5 वक्त की नमाज वर्जिश है. रोज़ा 12 घंटे की इंटीमेटेड फास्टिंग है. ज़कात, सदका इंसान के लिए है और उससे गुर्बत और गरीबी दूर होती है. इससे ज़्यादा कुछ नहीं है. वालिद वालिदैन के पैरों के नीचे जन्नत है ताकि उनकी आप खिदमत करो. हर चीज़ का रास्ता कुरान शरीफ में बताया गया है और उसकी डिक्शनरी है हदीस. हम दुनिया की किताबें पढ़नी चाहिए. हमारी किताब पढ़ करके दुनिया ने तरक्की करी है. हम उनकी किताब पढ़ करके तरक्की नहीं कर सकते जब तक कि हम अपनी किताब को नहीं समझेंगे. आपको हमको लेबल कर दिया गया है. बुरी कौम, जिहादी कौम, टेररिस्ट कौम. ये इसलिए किया गया है ताकि आप आपके रास्तों से भटक जाओ और वो आपको जो वर्गला रहे हैं, भड़का रहे हैं, उन चक्करों में आप फंस जाओ और आप एजुकेशन से दूर हो जाओ. आप अपने मज़हब से, बेसिक प्रिंसिपल से दूर हो जाओ और आप हरी, पीली, काली टोपी, पगड़ी, झब्बा, लिबास, इसमें चक्करों में फंस जाओ. मैं बच्चों से यहाँ कहना चाहूँगा, ज़िंदगी में आपकी सब में बड़ी मिल्कियत आपका बैंक बैलेंस नहीं है, आपके दागीने नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी नहीं है. सबसे बड़ी मिल्कियत है आपकी तरबियत, एजुकेशन. और वो कुरान की मुकम्मल तालीम, मतलब दीन की मुकम्मल तालीम, मतलब ह्यूमन एनसाइक्लोपीडिया की मुकम्मल तालीम. इंटरनेट का ज़माना है. आप और हमको पढ़ने के लिए बहुत आसानी है. पूरी कुरान शरीफ अभी आपको सारी ज़ुबानों में ट्रांसलेटेड मिलती है. ट्रेन में बैठ के आप हेडफोन लगा के जो म्यूज़िक सुनते हो ना, उसके बदले में कुरान शरीफ का अगर आप ट्रांसलेशन सुनोगे तो आपकी ज़िंदगी संवरेगी, सुधर जाएगी. ट्रेन में बैठ के जो आप वीडियो देखते हो, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई बहुत बड़े आलिम या उलमाओं की तकरीर सुनो. मैं ये कहूँगा कि आप हदीस शरीफ के ट्रांसलेशन सुनो और उन मुद्दों पे जाकर के देखो जिन पर आपको रास्ता नहीं मिलता हो आपकी ज़िंदगी में. उनका रास्ता आपको कुरान शरीफ और हदीस शरीफ के ज़रिए दिखाई देगा.
यही है ईमान और यही है मजहब। मजहब क्या है? बहुत ही सिंपल है। आप जो कर्म है वही आपका धर्म है। उसको आप मुकम्मल तरकीब से अब जब समझोगे तो दुनियावी तालीम आपके लिए पीनट्स हो जाएगी, मतलब एकदम आसान। वो कहावत है ना, जिसे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं, मस्के में से बाल निकल जाना, इतना आसान हो जाएगा। आपकी जब दीनी तालीम दुनियावी तालीम के साथ साथ में चलेगी, आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। और जो तालीम आप पाओगे वो आपका गहना है, वही प्रॉपर्टी है, वही दागीना है, वही सोना है, वही चांदी है, क्योंकि दुनिया की कोई ताकत आपसे वो छीन नहीं सकती। कोई कोर्ट नहीं छीन सकती, कोई सरकार नहीं छीन सकती, कोई बेगम अपने शोहर से नहीं छीन सकती और कोई शोहर अपने बेगम से नहीं छीन सकता। कोई भाई भतीजे प्रॉपर्टी के रूप में आपसे छीन नहीं सकते। वो अल्लाह ताला के ज़रिए आपको मिलेगी और आपके साथ मिट्टी में जाएगी। और सबसे बड़ा डिजिग्नेशन जो है वो आपका बैंक बैलेंस नहीं है। जो बच्चे अभी गुल्लू चाचा बोल रहे थे, आज के बच्चे बहुत पढ़ते हैं। चाचा, अभी ज़माना सिर्फ तरबियत का है, पढ़ाई का है। जितना बड़ी डिग्री विजिटिंग कार्ड पे होगी, BA, LLB, LLM, मास्टर्स, अमुक ढमुक फलाना पुछड़ा, वही प्रॉपर्टी है। आपकी हमारी कौम को वो बड़े डिग्रियों की ज़रूरत है, बड़े तकरीरों की ज़रूरत नहीं है। हमारे बच्चों ने तालीम, हुजूर ने कहा था कि तालीम के लिए चीन तक जाना पड़े तो चीन तक जाइए। आपको पता है हुजूर ने फरमाया था कि रात में एक रोटी कम खाइए। कभी आपने हिसाब जोड़ा है कि एक रोटी अगर कौम, पूरी दुनिया का इंसान 750-800 करोड़ है, एक रोटी कम खाएगा तो 800 करोड़ रोटियां बचती है। मतलब 400 करोड़ 2 रोटी खा सकते हैं और 200 करोड़ 4 रोटी खा सकते हैं। इस्लाम के अंदर की हर बातें साइंटिफिक है और इकोनॉमिकल है, इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई है। इसे समझने की ज़रूरत है। तो बच्चों, आपको तालीम हासिल करनी है और तालीम के लिए चीन तक जाना पड़े तो लोग आज कनाडा जाते हैं, न्यूजीलैंड जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, अमेरिका जाते हैं। तो वालिद वालिदैन से मैं कहूँगा कि घर में आधा किलो गोश्त कम लाइएगा, 1 किलो चिकन हफ्ते में मत बनाइएगा, मछली मत बनाइएगा, मगर अपने बच्चों की तालीम के लिए, उनको डिग्री के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, मास्टर्स के लिए, डॉक्टर के लिए, MD के लिए, इंजीनियर के लिए, IT के लिए पढ़ाने के लिए पैसों की कमी मत रखिएगा। 3 बेडरूम का फ्लैट मत लीजिएगा, 2 बेडरूम में रहिएगा, मगर बच्चों को तालीम के लिए वो लाखों करोड़ों रुपए आप लगाओगे, तभी आप कह सकते हो कि आपने भी समाज के लिए, कम्युनिटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया है। इस फैमिली ने किया, अपना सरमाया लगा के किया। आप सब लोग कर सकते हैं। आपको कहीं सरमाया नहीं लगाना है, आपको अपनी बचत करनी है और अपने बच्चों को पढ़ाना है। और जिस वक्त आप अपने बच्चों को तरबियत दोगे तो आप पूरी कम्युनिटी को पढ़ा रहे हो, ये बात याद रखिएगा। बिकॉज देयर इज अ प्रोवर्ब व्हिच सेज ईच वन टीच वन। वी हैव टू टीच ईच एंड एवरी पर्सन। वी गिव ज़कात टू विडोज, टू ऑर्फन्स। आई गिव ज़कात एवरी डे 12 months 365 days for education purpose, irrespective of caste, creed and religion, irrespective from where the family is, from where the student is. Because education is the only thing which can improvise the quality of a family, of an individual, of the community, of the society and of the country. आपके हमारे मुल्क के अंदर जो कुछ भी आज तमाशा चल रहा है, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा उसके बहकावे हुए मत आइएगा। 20 करोड़ हिंदुस्तानियों को इस देश से कोई नहीं निकाल सकता, इसलिए उस वर्गालय में मत आइए। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, भूल जाइए, फॉरगेट अबाउट इट। ये कान बंद कर दीजिए, अपने पढ़ाई पे ध्यान कीजिए। मेरे नौजवान बच्चों, साथीदारों से मैं कहूँगा
बिल्कुल इन चक्करों में मत पड़िए। बी वेरी फोकस्ड। वी हैव टू रीच दिस डेस्टिनेशन, लेट व्हाट मे हैपन। वी हैव टू बी डिटरमिन्ड दैट वी विल रीच हियर। और वंस यू रीच दैट डेस्टिनेशन, दैट इज गोइंग टू बी द स्लैप ऑन द फेस ऑफ दिस पीपल। डोंट स्लैप हिम। नो फिजिकल एब्यूज, no oral abuse. Our education, our determination, our reaching to the destination is a slap on this face of these people who are trying to take us away from our target. वो नहीं चाहते कि आप तरक्की करो और वो नहीं चाहते कि आप तालीम हासिल करो। इसीलिए वो रोज़ मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, दरगाह के मसले निकालते रहेंगे, करते रहेंगे। करते रहने दीजिए। उसको करने के लिए बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे ऐसे लोग हैं, नौजवान और बच्चों ने और बच्चियों ने सिर्फ और सिर्फ अपनी तालीम पे ध्यान करना है। एक बच्ची अगर तालीम हासिल करती है तो हुजूर ने फरमाया था 10 पुश्तों को पढ़ाती है। 10 जनरेशंस कैन गेट एजुकेटेड। यह माँ के ऊपर गाना चल रहा था, बाप पे नहीं चला। यह अल्लाह ताला की मर्जी है कि वालदा को वो ताकत दी है कि मादुरी जुबान कहा जाती है, बाप की जुबान नहीं कहा जाता, मदर्स टंग कहा जाता है। मदर की जो गोद होती है, माँ की जो गोद होती है, वो सब में बड़ी यूनिवर्सिटी है। और इसीलिए हमारी ख़वातीनों को भी तालीम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हमारे इसमें एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो माइग्रेट होकर के रोज़ आते हैं, गांव से, खेड़ों से, पहाड़ों से, बंगाल से, बिहार से, यूपी से, और उनके घर की जो ख़वातीन हैं उनको तालीम नहीं है। फारूक भाई, जुबैर भाई, ये जो सब में बड़ा जो कांस्टेंट कंटिन्यूस जो संघर्ष है आपका हमारा, कि आप एक लॉट को पढ़ा करके ग्रेजुएट करके आगे बढ़ा रहे हो, उसको सक्षम बना रहे हो, उसके पीछे एक दूसरा लॉट आता है रूरल इंडिया से। वो एक दूसरा टारगेट हमारे लिए सेट करता है कि ये जो आ रहे हैं इनके बच्चों को पढ़ाना है, मगर उनके बच्चों को पढ़ाने के साथ में उनके वालिद वालिदैन को भी तरबियत देना, ये बहुत बड़ा एक टास्क आपके हमारे सामने है, क्योंकि ये साइकिल रुकने वाला नहीं। तो हमको कौम को जब हम आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो लुकिंग फॉरवर्ड, स्टैंड स्टिल एंड द पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम द बैक साइड, उनको ये तीनों चीज़ पे आपको हमको फोकस करने की ज़रूरत है। मैं आप सबको, बानेगर फैमिली को बहुत सारी दुआएं भी देता हूँ। दुआ देने के लायक तो मैं नहीं हूँ चाचा आपके सामने, मगर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसी तरह से बानेगर फैमिली एजुकेशन में, फिलंथ्रोपिक काम में, गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए जिस तरह से काम करते आई है, उस तरह से हम मिल के काम करते रहेंगे। कौम को आप जैसे, हमारे जैसी और ये नौजवानों के कंधों की और ताकत की बहुत ज़रूरत है, और वो ज़रूरत सिर्फ एजुकेशन से पूरी हो सकती है। आप सभी लोगों को, बच्चों को, टीचर्स को, प्रिंसिपल को, स्टाफ को, इस इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हर उस छोटे व्यक्ति को जो हाउसकीपिंग का भी काम करता हो, डेस्क का साफ करने का भी काम करता हो, इन सब को बहुत सारी मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।